Hello friends, good morning, and today we will continue our earlier topic of the physics, and the title is the electric current. So today we will discuss about the combination of the resistors. Okay friends, so combination of resistor is divided in two types. In other words, we can say the combination of resistors is of two types. First one is series combination, and second one is पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास में ये जो रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशंस होता है दो तरीके का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? व्हेनेवर टू एंड मोर देन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड with each other end to end. Okay, end to end जुड़े रहे. कैसे? Look here, this is the first resistor, second resistors, and this is the third resistors. That's way they are connected to end. Okay friends, this is a circuit diagram. Earlier I have told you all about these symbols. What's about the K for key, A for ammeter, this is B for battery, this is R1, this is R2, and this is R3, R1, R2, all these are the resistors. ये सारे के सारे resistors हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है. ठीक है. So this is known as series combination. So what is the series combination? Whenever two and more than resistors are connect each other by end to end, this is known as series combination. In other words, we can say that whenever two and more than two resistors are connected such that the second end of the first resistor is connected with the first end of the second resistors, and the second end of the second resistors is connected with the first end of the third resistors. ठीक है. तो इसका ये देखिए फर्स्ट रेसिस्टर है, ये इसका सेकंड एंड है, और ये सेकंड रेसिस्टर है, ये इसका फर्स्ट एंड है. ये दोनों कनेक्टेड है. ये सेकंड एंड है सेकंड रेसिस्टर का, और ये फर्स्ट एंड है थर्ड रेसिस्टर्स का, ये दोनों कनेक्टेड है. सो दिस टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ का फ्रेंड्स अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ हम लोग ये वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं. दिस इज द V1, दिस वन इज V2, एंड दैट्स वे वी कैन फाइंड आउट द V3. ओके. So whenever the examiner asks you draw a circuit diagram of series combination का circuit diagram बनाना, तब आपको ये वाला बनाना है. So this is series combination. Okay friends. So in these type of the combinations we have to find three main things. What are three? First one is equivalent resistance, second one the flowing current, and third one the potential difference across the end of the wires. ठीक है. एक तो करंट फाइंड करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और तीसरा चीज हम लोगों को उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R. सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN. R3 why? Because we have taken only 3.
तो 3 लिया तो हम लोग R1 R2 और R3, बट सपोज दैट देयर आर मेनी रेसिस्टर्स, सो इट इज नोन Rn, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितना है, 10 है, 20 है, 50 है, जितने भी रेसिस्टर्स कनेक्टेड होंगे उन सबका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके से हम लोग उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? ओके। बोले सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज 5 ओम। सपोज कर लीजिए ये 5 ओम का है, दिस इज 10 ओम एंड दिस इज द 15 ओम। ओके। अब ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, R इज इक्वल टू R1, व्हाट इज द R1? 5, R2 10, R3 15, तो 10 plus 5 15 and 15 30. So this is the equivalent resistance. It's a clear? So we can find out the equivalent resistance by this formula. First thing. Second thing is I. I find करना है, यानी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I is equal to what is the Ohm's law? Ohm's law is V is equal to RI. ये अपने पास में क्या है, ओम्स लॉ है, तो इस ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे I का वैल्यू, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन व्हाट्स अबाउट द V, तो V इज, ये जो बैटरी है ये कितना वोल्ट का बैटरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं, ये हमारे पास में 30 वोल्ट का बैटरी है। अब कोई कह दे कि सर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो V कितना है 30, R का वैल्यू कितना फाइंड किया फ्रेंड अभी आपने 30 डिवाइडेड बाई 30, दैट्स वे 1 एम्पियर। तो इसमें जो फ्लोइंग करंट होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर? ओके। अब थर्ड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, V पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे कितना है, इस पे कितना है और इस पे कितना है, तो दैट इज नोन एज V1, फर्स्ट वाला V1। तो V को फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ को यूज करते हुए RI, तो R मीन R1I। वाई वी हैव टेकन द R1 क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को इसके एंड्स पे फाइंड करना है। ओके, तो V1 इज इक्वल टू R1I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R1? R1 इज 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I? 1। सो दैट्स वे 5 1 जा 5, कितना हो गया फ्रेंड्स 5 वोल्ट। V2 फाइंड करना है R2I, R2 कितना था 10, I कितना है वही 1 ही है। देखिए एक ध्यान रखना, वन थिंग यू हैव मस्ट रिमेंबर दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द फ्लोइंग करंट विल बी द सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। जितने भी रेसिस्टर्स होंगे उसके अंदर फ्लोइंग करंट सब में सेम होगा, उनके अंदर बहने वाला जो करंट होगा उसका वैल्यू इक्वल रहेगा, इसलिए I में चेंज नहीं होगा। तो V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, एंड व्हाट्स अबाउट द V3? R3I, देन R3 15 इंटू I की वैल्यू है 1, तो 15 बन जा 15 वोल्ट। इट्स अ क्लियर। और एक लास्ट थिंग, जो इसका जो टोटल V है यहाँ से यहाँ तक का फ्रेंड्स, ये जो V है इट शुड बी इक्वल्स टू दिस वन। ये जो आपका जो बैटरी जितने वोल्ट का लगा है इसके इक्वलेंट होना चाहिए। इट मीन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब V1 कितना है फ्रेंड्स 5, V2 कितना है 10, वो कितना है 15, टोटल कितना हो गया 30 वोल्ट। ओके, अब आपने बैटरी कितने का लगाया था 30 वोल्ट का। इट्स अ क्लियर। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है। समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब फ्रेंड ये बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल पे डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, सो दैट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन। जो स्ट्रीट या रोड लाइट्स होती हैं, जो बहुत सारी लाइट्स होती हैं एक दूसरे के साथ में, एक स्विच से ही सारी चालू हो जाती है, एक स्विच से बंद हो जाती हैं, सो दैट इज़ नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट होता है, हमारे घरों में जो सर्किट्स बने होते हैं, आपने देखा होगा कि फैन के लिए अलग स्विच है, एलईडी बल्ब के लिए अलग स्विच है, एसी का अलग स्विच है, बहुत सारे स्विचेस लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं?
दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो फ्रेंड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और उसमें क्या होता है, जिस डिवाइस को हमको चालू करना होता है वही डिवाइस उसमें यूज़ करती है और सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। और सबका पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम होता है, इसमें सेपरेट होता था, उसमें सेम होता है। कैसे, वो देखिए एक बार। अब मैं यहाँ एक सर्किट बना रहा हूँ किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लेसन। एवरी ईयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन वन क्वेश्चन 100% अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। चाहे वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो उससे थ्योरेटिकल हो। थ्योरेटिकल में तो इस तरीके का सर्किट बना लिया जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट जनरेट हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट वन, तो इसको 1/R से डिनोट करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेसर देन लीस्ट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लेसर देन लीस्ट। बोले सर लेसर देन लीस्ट क्या होता है, सबसे कम से भी कम। कैसे, देखिए यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 ओम 10 ओम 15 ओम। ये 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया और ये 15 ओम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वन इज R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज R3, ओके। अब मैं इसमें वोल्ट भी उतने का बैटरी लगा देता है। ये जो बैटरी है ये भी मान लीजिए 30 वोल्ट का ही है। क्यों लगाया है, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा अब यहाँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस टाइप के डिफरेंसेस जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोगों को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 30 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, व्हाट आई टोल्ड यू। उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला आता है, सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। जितने भी रेसिस्टर्स हो उनके सबके सम के इक्वल। और इसमें क्या होगा, लेसर देन लीस्ट। लेसर देन लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम से भी कम। सबसे कम कितना है फ्रेंड्स, 5। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम से भी कम आएगा। कैसे, लुक ऑन योर स्क्रीन, 1/R equals to 1/5 plus 1/10 plus 1/15. Now by taking the LCM, so LCM is 30. तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30. So that's way 6 plus 3 plus 2 is equal to 11. 11/3 by cross multiply. 11R is equal to 30, then R is equal to 30/11. Now we have to be divide 30 by 11. So 11 2 जा 22. Okay. Remaining 8, 11 7 जा 77. Approximately 2.72 ohm. So it is lesser than least. सबसे कम से भी कम आया कि नहीं, ये 5 था तो वहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, 2.7। क्लियर। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, लेसर देन लीस्ट। फर्स्ट डिफरेंस पता चल गया। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, करंट की बात करता हूं फ्रेंड, आई। इसका जो आई था इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, द करंट इज द सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। सभी रेसिस्टर्स में सेम है, बट इन पैरेलल इट विल बी डिफर। ये तीनों में डिफरेंट होगा। कैसे होगा वो देखिए, I इज इक्वल टू V/R1। तो I V कितना है फ्रेंड्स, V कितना है, V इज इक्वल टू 30, R1 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा
30। कितना हो गया अपने पास में? 6 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R1। सेकेंड थिंग, I इज इक्वल टू V अपॉन R2। 30, what is R? 10, 3 एम्पियर। And what's about the third one? V upon R3, तो 30 upon 15, 2 एम्पियर। ओके, अब आपसे कोई पूछ ले कि इसका टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू ऐड कर ले, 6 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया बेटा? 11 एम्पियर। तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारे पास में? 11 एम्पियर। अब कोई ये कह दे कि सर 11 एम्पियर इस फॉर्मूले से वेरीफाई करके बताओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। देख लीजिए, तो ये I, V कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा? 30, और R कितना निकाला अभी आपने? दिस वन इज 30 अपॉन 11, 30 अपॉन 11। तो ये न्यूमरेटर जा करके चेंज हो जाएगा, 11 अपॉन 30, तो 30 से 30 कैंसिल, ये 11 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से, इसमें जो I है, I डिफरेंट होता है, इसमें I सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड थिंग, इसमें बच गया सर V किस तरीके से निकाला जाता है? तो V का इसमें क्या होता है? V सब में इक्वलेंट रहता है, सेम रहता है। इसमें V अलग नहीं रहता है। जैसे इसमें करंट सेम था लेकिन V डिफरेंट था, इसमें करंट डिफरेंट है और V सेम होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो V को निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू RI। ठीक है, तो अब R कितना निकाला अभी आपने? मैंने बताया नहीं है, 30 अपॉन 11, और I कितना फाइंड किया? टोटल 11। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया? 30 वोल्ट। ये अपने पास में 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of this lesson, the combination of the resistors. So first of all friend, there are the two type of the combinations resistors, series combination and parallel combination. Series combination basically used for the decorative light or road lights etc, and the parallel combination basically used in the domestic circuits. ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका अगर सर्किट डायग्राम आता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, दिस वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली इनमें 3 थिंग्स होती है। वन, एक तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड थिंग उसमें फ्लोइंग करंट, और थर्ड उसका पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पूछे तो कैसे लिखेंगे? नंबर 1 कौन सा वाला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे, इधर तो लिख देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ लिख देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ इसके अंदर क्या लिख देंगे? डिफरेंसेस। ठीक है, फर्स्ट वन में क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं उसके सम के इक्विवेलेंट होता है। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन। सेकेंड वन में बात करता हूँ करंट की। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स, व्हाइल द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें डिफरेंट होता है, इसमें सेम होता है। थर्ड थिंग आता है फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एट द अक्रॉस ऑफ द एंड ऑफ कंडक्टिंग वायर या एट द एंड ऑफ द रेसिस्टर्स इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट the potential difference across the end of each resistors is same in parallel combination. It's a clear friends? Okay, so that's way this is the topic of the series combination and parallel combination. I think you have enjoyed it very much. आप इसको बार बार देखें, अच्छे से समझें, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप उसको सॉर्ट आउट करें। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट।